Hello everyone, let me introduce to myself. My name is Neeta Killa and I am an angelic healer, trainer, Akashic reader, trainer, ancestral healer, trainer, therapist, Reiki Grant Master, NLP therapist, trainer, counselor, change your mindset coach, life set coach, pranic healer, and many more, many more. It's all added to it. So this is me, who I am, a spiritual healer, a guider in front of you. And today I'm going to discuss you with about what is Akashic record and introduction of Akashic record. कि Akashic record एक्चुअली में क्या है? बहुत लोग सोशल मीडियाज में सब जगह सुन रहे हैं. Everyone is coming to know and they are hearing about the Akashic record, what it is. So what this record is about. I think now you can see it properly. Okay. So here, what are Akashic records? Now let me explain you each and everything, minute to minute thing and small to big things, everything I will explain you what is Akashic record. Now let us discuss first the term Akashic record. कि ये क्या है? From where this word Akashic has come? ये कहाँ से ये Akashic record word जो है ये कहाँ से आया है? This Akashic record is made up of two elements, that is, one is Akash and one is record. So it is made up of two things. One is Akash and the second one is record. But this word Akashic is made from the word Akasha. जो आकाश है, जो आकाश तत्व है, this word Akash has come from that. Akash is one element, वो एक तत्व है. And we all know this body is made up of 5 elements. We all are made up of 5 elements. And ये जो whole creation है, whether it is living being or non living being, ये सब कोई all 5 elements से बने हैं. Everything, each and everything is made up of 5 elements. So in this five element, there is a primary element which is known as Akash. So Akash is primary element. So let us understand कि ये जो वर्ड है आकाश, ये क्या है. सो जब क्रिएशन होता है, व्हेन द क्रिएशन वाज डन, सृष्टि होती है, सारा का सारा निर्माण जो होता है वो कहाँ से होता है? ये प्राइमरी एलिमेंट से. फ्रॉम दिस प्राइमरी एलिमेंट विच वी से ईथर और आकाश. जब सृष्टि हुआ था तो भी दिस ईथर एंड आकाश वाज देयर, और जब प्रलय हो जाएगी तभी भी वो ईथर एंड आकाश विल बी देयर. So, because of this primary element, ether and akash, this is very subtle and this is called sukshma. So, for example, I will give you one example. Ki there is a pencil box, and in this pencil box, there is a pen, pencil, eraser, sharpener, variety of things are kept. और when we open that pencil box, everything pop out, come inside it. तो जो उसके अंदर है वही तो बाहर आया. तो in the same way, what happens कि जो चीज ऑलरेडी इस आकाश तत्व में, इस ईथर में है, वो ही बाहर आती है जब सृष्टि होता है. तो वही चीज जो एयर है, फायर है, वाटर है, मटेरियल है, वही सब उसी के अंदर से सब वापस वो जो 5 एलिमेंट्स हैं जो ऑलरेडी थे, दैट पॉप आउट, दैट केम आउट. सृष्टि के टाइम होते हैं और वो क्या होता है, उसको हम लोग आकाश या ईथर कहते हैं, एज एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ. और जब प्रलय होगी तो एवरीथिंग व्हाट, इट विल गो बैक. वो डिस्ट्रक्शन के टाइम में, प्रलय के टाइम में अगेन इट विल गो बैक. सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर ग्रॉसर, दे आर द ग्रॉसर एलिमेंट्स. Now, why this is called grosser? Because you must have felt कि जब हवा चलती है, फॉर एग्जाम्पल फैन चल रहा है,
So you can feel the presence of the fan कि ये hot है, cold है. We can feel it, but we can't touch it. Only we can feel the air. Yes, अभी ठंडी हवा चल रही है. Cold air is blowing. Okay, now hot air is coming. गरम हवा चल रही है. So all these you can feel it. जो fine है. So though air is क्या fine, fine because we can feel it. तो कहीं पर भी नाउ द फायर इज व्हाट, उससे थोड़ा और ज्यादा फाइन. अब कहीं पे भी फायर लगा, सो वी कैन सी दैट फायर एंड वी कैन ऑल्सो फील दैट फायर कि हाउ हॉट इट इज. अगर हमको पता है कि इफ आई विल पुट माई हैंड इन दिस फायर तो ये हाथ मेरा जल जाएगा. सो वी कैन फील द टेम्परेचर ऑफ द फायर which is outside. I'm not talking about the physical body, the fire which is inside. वो हमको नुकसान नहीं करती है. That is another thing. But the fire which is outside is more grosser than the air. वो कोई भी चीज को anything that we can see burning. Now comes the water. We can consume water, we can drink water, we can touch water, and for some time थोड़ा देर के लिए we can hold the water also. So this is more gross. So air हुआ थोड़ा सा gross, fire उससे ज्यादा, and water is more gross. Now earth is the grossest. जिसका वो ज्यादा gross है. Why? Because we can touch, we can hold in all the ways, and we can feel it also. All these elements हम किसी न किसी तरह सेंस कर सकते हैं. ये जो पांच जो हमारी जो सेंसेस है ना, we can see, we can feel, we can touch, we can, so we can hold also. अर्थ को, सृष्टि को हम लोग होल्ड भी कर सकते हैं. सो दिस इज द मोस्ट ग्रॉसेस्ट. तो जब हम आकाश या ईथर की बात करते हैं, नीदर वी कैन सी फील इट, नीदर वी कैन लिसन इट. दिस इज वाई थ्रू आवर सेंसेस वी कांट फील इट. ईथर एलिमेंट, सो दिस आकाश जो तत्व है ईथर इज सटल. सटल मीन्स कि सबसे ज्यादा सूक्ष्म है वो, बहुत ज्यादा सूक्ष्म है वो. दिस इज प्राइमरी बिकॉज दिस इज द ओनली अदर एलिमेंट्स विच वी कैन गेट मैनिफेस्टेड. सो बाकी एलिमेंट्स क्रिएशन के वक्त ही निकला था, और जब प्रलय होगी वो वापस उसमें चला जाएगा. सो वी कॉल दिस एलिमेंट एज मदर एलिमेंट और प्राइमरी एलिमेंट. जब प्रलय होती है, जब डिस्ट्रक्शन होता है, प्रलय होती है, तो सारी की सारी चीज वापस उसमें चली जाती है. यू कैन सी कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर आर गोइंग इनटू दिस ईथर. So these are what? These are all temporary. It's not permanent at all. तो फॉर एग्जाम्पल जब प्रलय होगी, जो जब सृष्टि चलती है, सृष्टि के टाइम में जब प्रलय हुआ, सृष्टि हुई, निकली, प्रलय हुआ, उसके अंदर वापस डिस्ट्रक्शन के टाइम में वो सब चला गया. दैट इज ईथर और आकाश, एंड दिस इज कॉल्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्शंस और प्रलय. सो नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम अब प्राइमरी तत्व है, दिस इज सूक्ष्म, सो वी कांट सी इट विथ आवर ओन आईज. वो हम लोग नहीं देख सकते हैं बिकॉज दिस इज वेरी सूक्ष्म, दिस इज वेरी सटल. सो वी कैन फील इट, हम लोग महसूस कर सकते हैं. एंड थर्डली इट इज परमानेंट, ऑलवेज इट इज देयर. these are not, these are temporary. ये एयर, फायर, वाटर, अर्थ सृष्टि से निकली है, सृष्टि में चली जाएगी, बट दिस इज ईथर, आकाश, इट इज परमानेंट. वो कल भी था, आज भी है. हम लोग को पता नहीं, वी डोंट नो कि फ्रॉम सो मेनी इयर्स, पता नहीं कितने ही युगों से दिस इज देयर, दिस आकाश तत्व, दिस इज देयर. जो जो हम लोग बोलते हैं देख नहीं सकते, इट इज वेरी सूक्ष्म, वी कांट सी इट, it is there. So next next it is what? Omni present. वो क्या है कि हर चीज हर जगह वो व्याप्त है. एवरीवेयर इट इज देयर. ये जब बोलते हैं ना कण कण में व्याप्त है.
whether you are sitting in the house or you are doing the workplace, अपने जगह पे हो, or you are going out any state, any places, any country, wherever in the world you are, you will see this आकाश element. वो हर जगह ही व्याप्त है, कण कण में, हर जगह. ये नहीं है कि आज अगर हम यहाँ हैं तो हम यहाँ से ही देख सकते हैं. नो, इट इज नॉट एट ऑल देयर. सो आई होप यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल. So now the question comes, let's now discuss about the records. This records क्या donate करता है, what it donate us, किस चीज का रिकॉर्ड है. माइंड में आता है ना कि व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड इट इज, क्या चीज का रिकॉर्ड है, हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं, क्या जान सकते हैं. तो फर्स्टली आई विल से यू कि दिस इज नॉट ओनली द सोल रिकॉर्ड. ये कॉस्मोस में हर एक चीज, एवरीथिंग विच इज हैपनिंग, वेदर इट इज लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, एवरीथिंग, ये हर एक चीज का रिकॉर्ड है. ये नहीं बोलेंगे, वी कांट से ओनली दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ द सोल. नो, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दे. माइक्रो से माइक्रो चीज, मैक्रो से मैक्रो चीज, छोटी सी छोटी चीज, बड़ी सी बड़ी चीज, एवरीथिंग का रिकॉर्ड है. एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड देयर. हर चीज का यू विल गेट द रिकॉर्ड देयर. फॉर एग्जाम्पल आई विल से बेबी इज बॉर्न. जब बच्चा बॉर्न होता है, एवरी वन उस पर अटेंशन, एवरी वन इज पेइंग अटेंशन, एवरी इज वन इज गिविंग समथिंग थॉट. कोई अच्छा थॉट दे रहा है, कोई बुरा थॉट दे रहा है, वॉट एवर द एक्शन, एवरी वन इज प्लेइंग, ईच एंड एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड देयर एज इट इज अ लाइव टेलीकास्ट. जैसे बोलते हैं ना कि एक लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वेयर एवर यू आर इन द प्लैनेट, ईच एंड एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड देयर. अगर कहीं पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड देयर. न्यू प्लैनेट इज बीइंग फ्रॉम फॉर्म, इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड देयर. कॉस्मोस में एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग, माइक्रो से माइक्रो लेवल में, मैक्रो से मैक्रो मैक्रो लेवल में, माइक्रो हो या मैक्रो हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, ईच एंड एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड देयर. यस, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जहां सब कुछ रिकॉर्ड होता है. एवरीथिंग, एवरीथिंग. अब किसी को लगता है कि क्या हम छोटी से छोटी चीज में वी कैन नो इट अबाउट इट. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ईच एंड एवरीथिंग डेली टू डेली लाइफ का यू कैन नो अबाउट इट. एज अ सोल, हम जो भी बोलते हैं, वॉट एवर वी स्पीक, वॉट एवर वी राइट, वॉट एवर वी थिंक, वॉट एवर एक्शन वी आर डूइंग इट, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड देयर. नाउ जो हम लोग लाइव बोल रहे हैं, कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गेटिंग रिकॉर्डेड देयर एज इट इज अ लाइव रिकॉर्ड. एवरीथिंग वी कांट वहां का, बिकॉज यू नो दिस इज अ वाइब्रेशनल, सारा एनर्जी का एक वाइब्रेशन का तो खेला है. एंड दिस रिकॉर्ड इज इन अ वाइब्रेशन फॉर्म. सो इन अ वाइब्रेशन फॉर्म एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड देयर. इन एक वाइब्रेशन फॉर्म में वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है. हर एक चीज वहां पे जाके रिकॉर्ड होता जा रहा है. होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड, होप यू हैव अंडरस्टूड कि वहां पे क्या क्या कैसे कैसे ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड हो रहा है. सो हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमको वहां पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है. फर्क किससे पड़ना चाहिए? हमसे. एज अ सोल हमारी क्या जर्नी है, कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, लीव इट. हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ओनली वी आर कंसर्न्ड अबाउट आवर सेल्फ कि यस, दिस इज माई सोल जर्नी. ऑफ कोर्स अभी स्लोली स्लोली एवरीथिंग आई एम गोइंग टू ओपन इट. तो दिस इज माई सोल जर्नी. तो फर्स्ट कंसर्न होना चाहिए माई सेल्फ, आर सेल्फ. हमारा कंसर्न, तो फर्स्ट कंसर्न ये होना चाहिए, हमारा सबसे बड़ा फर्स्ट कंसर्न. सो दिस इज द टूल. दिस आकाशिक रिकॉर्ड एक ये ऐसा टूल है, दिस इज अ टूल कि वेयर एवर वॉट एवर जो कर्म आप करके आए हो, यू यू वी डोंट नो कि हम कितने इनकारनेशन से हम लोग जन्म ले चुके हैं. जो बोलते हैं 84 लाख, 84 लाख जोनी हम जी के आए हैं. ईच एंड एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्ड. दिस आकाशिक रिकॉर्ड में वहां पर ये रिकॉर्ड है.
हम लोग को पता नहीं है कि हम कितने जन्म लेके आए इन रिमेबल टाइम, because this is infinite, it is totally infinite, it is subtle there. On we cannot see through our five senses. It is present, it is omnipresent, it is present everywhere, it is infinite, it cannot be measured. और हर एक चीज का वहां पे रिकॉर्ड है, पास्ट का भी है, प्रेजेंट का भी है, फ्यूचर का भी है। ईच एंड एवरीथिंग का वहां पे रिकॉर्ड है, देर इज नो काउंटिंग। अगर कोई आपको बोलता है कि हाँ हम बता सकते हैं, आई कैन टेल यू कि यस हाउ मेनी बर्थ यू हैव टेकन एंड यू हैव टेकन इतना बर्थ, तो ये जान लीजिएगा दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज वी ऑल हैव टेकन इनन्यूमरेबल बर्थ एंड वी डोंट नो कि हम लोग क्या क्या बर्थ लेके आए हैं। नोबडी कैन टेल यू कि हाँ आप 20 ईयर्स से ये आप दिस इज योर 20 ईयर्स आपका हो गया है, इस इनकारनेशन में आते हुए आपका 30 ईयर्स हो गया है। नो, दिस इज इनफाइनाइट, बिकॉज देर इज नो काउंटिंग देर। क्या हम कुत्ता बिल्ली, क्या हम चूहा कीड़ा कट वॉट एवर एंड इंसेक्ट एलिफेंट्स ह्यूमन बींग plant, crystals, gemstones, whatever form we have taken, it is irreparable. We have क्या we have taken the growth, we have taken the birth of an angel, यानी इतना सारा बर्थ हम लोग ले चुके हैं। बट बट वी कैन नो कि हाँ हम कौन सा जन्म ले चुके हैं, ये चीज हम लोग को पता चल सकता है कि पास्ट लाइफ में हम क्या थे, वॉट एवर हम इस प्रेजेंट लाइफ में जो हो रहा है, हम पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हम लोग करके आए थे। सो इफ एनीवन इज टेलिंग यू कि आपका, आई विल टेल यू हाउ मेनी टाइम यू हैव टेकन बर्थ, तो ये चीज समझ लेना कि दिस इज रॉन्ग। यस, यू कैन नो अबाउट योर री इनकारनेशंस कि हम लोग ह्यूमन बर्थ यस लिए हैं, हम लोग किस जन्म में क्या करके आए हैं, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन बर्थ एंड द री इनकारनेशंस। जो आए हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ बर्थ ले चुके हैं, वी हैव टेकन इट, एंड एज अ सोल जो हम कर्म क्रिएट कर चुके हैं, ऑल दीज आर रिकॉर्डेड देयर। ये एक ऐसा बोलते हैं ना, खाता है हमारे कर्मों का, जो लोग सब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हम करके आए हैं। कि बहुत लोगों को लगता है कि सारा भगवान ने हमें फैसिलिटीज दिया है लाइफ में, सब कुछ दिया, फिर भी हमारे लाइफ में वॉट एवर ABCD ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। So each and everything you can come to know about it. So what are ये क्या है जो कि ह्यूमन बीइंग का ये जो इनकारनेशंस है, प्रेजेंट इनकारनेशंस हैं, सो व्हाट इज दिस प्रेजेंट इनकारनेशंस, आर प्रेजेंट इनकारनेशंस, ये क्या है। सो फर्स्ट वी शुड नो कि जितने भी हम पास्ट के कर्म करके आए हैं वो एक साथ सबको जुड़ चुके हैं, और वो क्या हो गए, दिस इज ऑल कंबाइंड टुगेदर हैज बिकम द संचित कर्म। और जो आज हमारा ये प्रेजेंट लाइफ है, वो उस आकाशिक रिकॉर्ड से एक छोटा सा पार्ट हैज बीन गिवन टू अस इस प्रेजेंट लाइफ में हमको डील करने के लिए। सो वॉट एवर इन द पास्ट वी हैव डन, एक संचित कर्म में इट हैज बीन कंबाइंड टुगेदर, एंड फ्रॉम दैट रिकॉर्ड एक स्मॉल पार्ट इन दिस प्रेजेंट लाइफ वी हैव चोजन एंड हैज टेकन बर्थ। सो पास्ट इनरिबल पास्ट है, हमारा लाइफ टाइम है, ऑल दीज आर रिकॉर्डेड। तो इट इज, वी विल से इट इज अ फॉर्म ऑफ डेटा बेस। जो कंप्यूटर में एक हार्ड चिप होता है, सॉफ्ट चिप होता है ना, तो एक डेटा जो होता है, आकाशिक रिकॉर्ड इज अ डेटा बेस, एक वो एक ऐसा डेटा है। हम ऑल द सोल्स जर्नी, बिकॉज इट इज इनरिमेबल, बहुत बड़ा ये एक आकाशिक फील्ड है, ऑल द सोल्स जर्नी उस डेटा में है, इस आकाशिक रिकॉर्ड में है। सो दिस इज कॉल्ड आकाशिक रिकॉर्ड। सो ये जो है हमारा जो आज का डेस्टिनी है, सो ये जो है दिस इज कॉल्ड प्रारब्ध। आज जो हम अच्छा कर्म पिछले पास्ट से अगर हम अच्छा कर्म लेके आए, फॉर एग्जाम्पल, तो हम अच्छे फैमिली में वी आर टेकन बर्थ, वी आर गेटिंग गुड फैमिली, गुड पेरेंट्स, गुड रिलेशनशिप्स। इन लड़का है तो
मैरिड हो जाता है एक अच्छी लड़की से, अगर लड़की है तो उसको एक अच्छा फैमिली मिल जाता है, एक अच्छा घर ससुराल मिल जाता है, अच्छा नॉलेज मिलता है स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करने के लिए, एक आगे फील्ड पाथवे मिलता जाता है, इफ अ पर्सन हैज डन अ गुड पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा कर्म हम लोग करके आए हैं तो फॉर एग्जाम्पल आई विल से वन, यहाँ पे आई वुड लाइक टू से कि अब ये कैसे पता चलता है प्रारब्ध कर्म, कि एक बच्चा जब बॉर्न होता है तो एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो क्या करता है, एस्ट्रोलॉजर क्या करता है कि उसके, हाँ वो बच्चा तो बॉर्न हुआ, उसने तो कोई भी तरह का कोई भी कर्म नहीं किया, बिकॉज द चाइल्ड हैज इंस्टेंटली टेकन द बर्थ। वो जो बर्थ हुआ उसका तो अभी जीरो ही है एज, धीरे धीरे एज बढ़ेगा, धीरे धीरे कर्म होगा। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर कैसे उसका बर्थ लेने के बाद एक उसका चार्ट बना देता है, बिकॉज जो वो बच्चा जो बॉर्न हुआ है पास्ट इनकारनेशन में, जो भी कुछ वो बच्चा करके आया, दैट चाइल्ड हैज डन, बिकॉज ऑफ दैट एस्ट्रोलॉजिकली वो चार्ट बन जाता है। और दैट इज वाई एस्ट्रोलॉजिकल बता पाते हैं कि ये बच्चा जो बॉर्न हुआ है किस ग्रह और नक्षत्र में जाके वो बॉर्न हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट। तो जैसे ही एज आई टोल्ड यू कि अगर एक बच्चा जो हम लोग अगर अच्छा कर्म करके आए हैं तो हमको गुड नॉलेज मिलेगा, गुड स्पिरिचुअलिटी मिलेगा, हम लोग को अच्छे घर मिलेगा। अगर हम बैड कर्म करके आए हैं तो वी विल पीपल विल गेट द लोअर फैमिली, लो कास्ट, पुअर फैमिली, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस होगा उसमें, उनमें लैक ऑफ मेंटली ग्रोथ होगा। हो सकता है स्पिरिचुअली में भी वो लोग ज्यादा अटैचमेंट नहीं हो, वो लोग के संस्कार अच्छे नहीं होंगे, जिसके जो बहुत अच्छे गुड कर्मा लेके आए, वो लोग को दे हैव अ वेरी गुड संस्कार। तो एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द पास्ट कर्मा। सो आर प्रेजेंट बर्थ इज आर पास्ट समरी। इन शॉर्ट इफ वी से इट इज, कैन यू प्लीज अनम्यूट, म्यूट प्लीज म्यूट। So, sorry. So, our present birth is our past summary. We have got it. All things happening in our life is because of our past. जो भी कुछ हम करके आए हैं, नाउ वॉट एवर वी डू इन द प्रेजेंट, उससे हम बोलते हैं क्रियामान कर्म। तो एक हो गया संक्षिप्त, फिर हो गया प्रारब्ध, फिर हो गया क्रियामान कर्म प्रेजेंट। सो वॉट एवर वी आर डूइंग इन द प्रेजेंट, वो उससे हम फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, एंड फ्यूचर बर्थ वी आर क्रिएटिंग इट। सो वो हमारा बन जाता है न्यू डेस्टिनी। सो वी आर क्रिएटिंग आर न्यू डेस्टिनी। सो ये हो गया हम लोगों का आकाशिक रिकॉर्ड में जो एवरीथिंग इट इज देयर। नाउ आकाशिक रिकॉर्ड का प्रॉपर्टीज इज व्हाट, इट इज सटल, it is subtle, it cannot be received through five senses, because as Akash Tattva is Sukshma, we cannot see it from our eyes. तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग को एक ऐसा मेथड चाहिए, एक ऐसा आंखें चाहिए, सो दैट वी कैन सी इट। अब ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये सटल है और वो सूक्ष्म है, वहां पे एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड लाइव। जैसे यू आर वॉचिंग यूट्यूब है, फेसबुक है, यू आर वॉचिंग ये वहां पे लाइव स्ट्रीम, हियर अभी जो हो रहा है यू आर वॉचिंग लाइव स्ट्रीम, वॉट एवर द एक्शंस, वॉट एवर वी आर सेइंग, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड लाइव देयर। Each and everything is getting recorded. It is a ocean of energy, it is a vast and big ocean of energy। जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, वॉट एवर द इंटेंशंस वी आर गिविंग, each and everything in the energy form, in the energy form it is getting recorded there, एवरीथिंग इन द एनर्जी फॉर्म। कोई सोचता है कि अच्छा वहां पे ये बुक है, कोई भी है, किसी को कुछ दिखता है, इट डिपेंड्स। लेकिन हम लोग बोलते हैं वी से, क्योंकि पहले एक वैदिक टाइम में बोला जाता था, इट हैज बीन सेड कि इट इज अ बुक। सो एक पीपल लोगों का आज एक कॉन्सेप्ट हो गया कि ओके आकाशिक रिकॉर्ड मीन्स बुक, गुप्त। एज इन द गीता जी ऑल्सो पीपल हैव रेड कि चित्रगुप्त है, जो कि हम लोग को कर्मों का खाता लिख रहे हैं, एवरीथिंग चित्रगुप्त इज राइटिंग इट डाउन।
सो आज जो हम लोग के ग्रंथों में लिखा गया है अबाउट द कर्म का खाता विच चित्रगुप्त इज राइटिंग, सो पास्ट में इन आर बोलेंगे इन आर वैदिक साइंसेस, और बोले कि हम लोगों के जो ग्रंथों में है इट इज रिटन देयर, सो इन इट इज रिटन देयर कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ बुक, बट इट इज अ वास्ट ocean of energy, और ये जो वास्ट ओशन ऑफ एनर्जी इट इज रिटन देयर, ईच एंड एवरी सब सोल का वहां पे है, वहां पे ईच एंड एवरी सोल का है। और वो आगे और बताएंगे कि बिकॉज ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर सब सोल का है तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये मेरा कौन सा है। तो ये अभी दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है सब लोगों का माइंड में, दिस मस्ट बी गोइंग ऑन, सो यू विल कम टू नो। So, as we are in the ocean, so whatever the actions we are doing, whatever the intentions we are doing, it comes in the one vibration form, and this vibration goes and get collected in that record, live record. So, as it is the live record, so it is cannot be seen through our own senses क्योंकि energetically form में it is getting recorded there. These are the energy records, no physical records are there. So this is sukshma, subtle. It is very sukshma, it is subtle. If you want to access a record now, you can do it, because you cannot do it because it is sukshma. For that we need a special tool उसको करने के लिए। सो हाउ कैन वी डू इट, अब इन बोला जाता है कि वी कैन से थ्रू द प्रेयर करके, मेडिटेशन फॉर्म में, थ्रू द प्रेयर फॉर्म में we can increase our vibration, and then we can go to our record and open it, which you will do it today. As it is omni, it is present there, so we can do it through the in the meditation form, in the prayer form, and there are others method also. Through that methods you can access and go and see your record and open your record and see everything there, what is there in that record. Everything in that space is there. आप सबका, हम सबका, एवरीथिंग इज देयर, इट इज ओनली द, ये एक ऐसा ही जगह है जहां पे बोलते हैं ना इंस्टेंट हम लोग को माफी भी मिलती है, फॉरगिवनेस मिलती है। जब हम लोग को व्हेन वी सी आवर ओन रिकॉर्ड, व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट करके हम लोग जो आए हैं, देन ओनली वी एक्सेप्ट इट। जब हमको कोई दूसरा बोलता है ना, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, नहीं नहीं ऐसे कैसे वो बोल दिया हमको कि तुम ये करके आए हो, नो 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 नो, इट कांट बी दैट। बट व्हेन वी सी खुद कि yes, I have done this, and because of this I am suffering this today, whether it's health, wealth, finances, money, relationships, career, etc., in any field, then we accept it। और जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं वहां पे तुरंत इंस्टेंट हीलिंग होती है, जैसे ही हम लोग फॉरगिवनेस से मिलती है वहां पे इंस्टेंट फॉरगिवनेस मिलता है। सो दिस प्लेस इज इनफिनाइट, इट कैनॉट बी मेजर्ड। अब कोई बोलेगा कि भाई लेट्स सी कि कितना है, लेट अस मेजर, नो, इट कैनॉट बी मेजर्ड एट ऑल। So anything what has happened in the universe is infinite, because cosmos lifetime is infinite। वो आज पहले भी था, आज भी था, और कल भी रहेगा। सृष्टि नहीं बनी थी तब भी था, प्रलय हो जाएगी उसके बाद भी वो रहेगा, इट विल बी देयर। उसका एंड नहीं होने वाला है। तो इसमें जो रिकॉर्ड होता है वो इनफिनाइट रिकॉर्ड होता है, इनफिनाइट। यू कैन इमेजिन हम लोग का हर एक सोल का वी हैव द इनफिनाइट रिकॉर्ड देयर। माने जब जस्ट यू थिंक कि इनफिनाइट रिकॉर्ड, मतलब कि हम लोग को क्या क्या चीज हम लोगों के बारे में पता चल सकता है। और वो एंड रियली आई एम टेलिंग यू ऑल कि इसमें इंस्टेंट माफी मिलती है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग इट विथ यू। इसमें इंस्टेंट हमारे जो कार्मिक डेड है वो पूरा होता है। हम अगर कोई बोलता है कि हाँ हम आपके कर्म काट देंगे, हम किसी का कर्म नहीं काट सकते, यस, हम उसके कर्म को कम कर सकते हैं। And these records are uneditable and unalterable, you we cannot edit it, as ये जो वहाँ हो रहा है
लाइव हो रहा है, एवरीथिंग इज लाइव, वेदर यू आर डोनेटिंग इट, वेदर यू आर helping to others, whether you are doing healing, whether you are doing prayer, whether you are doing good thing or bad thing, everything, चाहे आप किसी को गुस्सा कर रहे हो, गाली दे रहे हो, चोरी कर रहे हो, everything is getting recorded and it is unedible, unalterable. आप सोचे कि हम if you are doing it good things, तो हमारा गुड का पलड़ा इज हियर एंड बैड का इज हियर, और समटाइम्स बैड का हियर गुड का हियर, तो चलो भाई बैलेंस कर दे, इसमें से प्लस माइनस नहीं, वी कांट डू प्लस माइनस। अगर गुड इज हाई तो हम लोगों को इस प्रेजेंट लाइफ में, हम लोग को एज सेड बिफोर कि हम लोगों को अच्छा घर में जन्म हो गए, हमें अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छे पेरेंट्स मिलेंगे, हमारे अच्छे स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होगा, हमें टीचर्स अच्छे मिलेंगे, हमारे सराउंडिंग्स में एवरीथिंग विल गुड गुड गुड। एंड अगर ये बैड कर्मा है तो हमारे पुअर घर में जन्म हो रहा है, या हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, वी आर फेसिंग मनी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, प्लस प्लस ये हम लोगों को मिलता है। सो it is uneditable and it is unalterable, you cannot do it, can't do any changes, वहां पे कोई भी तरह का changes नहीं हो सकता है। you can't erase it also, सोच लेंगे चलो भाई erase करते, no, no, can't erase it also। this यहाँ पे this is the record of everything here, ईच एंड एवरीथिंग का रिकॉर्ड इज हियर। हम लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग सुने भी होंगे, बोला भी होगा, ठीक है तुम खुद से तो दूसरों से तो झूठ बोल सकते हो लेकिन अपने आप से नहीं। एज इट इज एन इन्फिनाइट इज द ओशन ऑफ एनर्जी, आज हम वहां पे इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड देयर, वहां पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, हम उधर झूठ नहीं बोल सकते हैं। बहुत लोग बोल दिया ठीक है भाई, खुद से भी सोच रहे हैं हम झूठ बोल दे रहे हैं, नहीं, it can't, everything is getting recorded there, everything, record of everything। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये क्वेश्चन आता है सबके मन में, एंड आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा, यू मस्ट पीपल बी ऑल्सो थिंकिंग इट, कि इफ वी कांट एडिट एनीथिंग then why we should know about this record, if we can't alterate it तो क्या फायदा होगा, पास्ट लाइफ में हमने क्या गलती की है, what mistakes we have done, so why we should know about it, क्यों हम जाने। तो ये क्वेश्चन दिमाग में आता है एंड इट मस्ट बी गोइंग इन साइड योर माइंड ऑल्सो, ठीक है, एज इट इज अनएडिटेबल अनऑल्टरेबल देन व्हाई वी शुड नो इट। Here, I would like to say one thing. I will give you the one example in my case. This is my case study also. कि किसी का हमने रीडिंग किया था, आकाशिक रीडिंग, तो व्हाट हैपेंड, उस आकाशिक रीडिंग में पता चला बिकॉज ऑफ दैट पर्सन पास्ट कर्मा सो एंड सो, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। अब उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, एज द पर्सन केम टू नो कि ठीक है, अब उसका एक्सीडेंट होने वाला था, नाउ दैट पर्सन स्टार्टेड डूइंग दिस आकाशिक हीलिंग, स्टार्टेड डूइंग द फॉरगिवनेस। तो जैसे ही स्टार्टेड डूइंग द हीलिंग एंड द फॉरगिवनेस, उसका इंस्टेंट वहां पे हीलिंग होने लगा, इंस्टेंट फॉरगिवनेस होने लगा। तो जो उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, जिसमें उसको दोनों लेग उसका खराब होने वाला था, उसका व्हाट हैपेंड टू दैट पर्सन, उसका लेग्स ट्विस्ट होके रह गया दैट टाइम। एक बोलते हैं ना, एक स्मॉल ट्विस्ट, एक स्मॉल फ्रैक्चर सॉर्ट ऑफ होके रह गया। सो दिस रिकॉर्ड हेल्प्स इन दिस वे। तो वहां पे क्या होता है, इंस्टेंट फॉरगिवनेस होने लगा, इंस्टेंट इंस्टेंट हीलिंग होने लगा। तो बहुत बड़ा जो ये इंसिडेंट होने वाला था वो टल के, बोलते हैं ना कि फांसी लगने वाली होती है, अच्छे कर्म किए हुए रहते हैं तो फांसी की सजा भी सुई काट के चुप के टल गई। You must have heard about all these things, right? You must have read also in the शास्त्र, in the ग्रंथ also, बहुत सारी स्टोरीज हम लोग के स्पिरिचुअल रिलीजन्स के, you must have read about all these things also. So we can't erase it, but we can minimize it, the impact of it. हम अपने कर्म जो हम लोग करके आए हैं, we can at least minimize that कर्म। तो ये मत सोचना कि it is uneditable, it is unalterable, then what is the use?
बट वी कैन मिनिमाइज इट एट लीस्ट। बहुत लोगों का देखते हैं कि इतना खराब लाइफ टाइम में किया हुआ होता है कि लोग सोचते हैं कि इसका मौत इतना अच्छा कैसे हो गया। ये बंदा पर्सन अपने लाइफ में इतना सब कुछ सबके साथ खराब किया, लेकिन फिर भी उसने अपने लाइफ में बहुत सुख भोगा, एंड इन द एंड ऑल्सो उसका डेथ इतना बढ़िया हो गया बिकॉज ऑफ हिज कर्म। जब उस पर्सन को थ्रू दिस रिकॉर्ड्स पता चलता है, एज यस आई हैव रेड सो मेनी आकाशिक रीडिंग, बहुत लोगों का आई हैव डन, एंड तो एंड जो लोग सीख रहे हैं दीज रिकॉर्ड्स दिस आकाशिक, तो इंस्टेंटली वो लोग की हीलिंग हो रही है, इंस्टेंटली फॉरगिवनेस हो रहा है। तो ये इससे क्या होता है कि सोल्यूशन, वन थिंग ऑल्सो यस आई वुड लाइक टू से कि जो एस्ट्रोलॉजी होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली जो पामिस्ट्रीज होते हैं, हाथ ये सब देखते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि ये जेमस्टोन दिया, ये मंत्र कर लो, ये पूजा पाठ कर लो, आपके कर्म कट जाएंगे, आपके कर्म खत्म हो जाएंगे। नो, कर्म कोई किसी के भी खत्म नहीं होते हैं। इट कैन बी मिनिमाइज बट खत्म, अगर कोई आपको बोल भी रहा है ना, तो ये जान लीजिए कि आपका कर्म नहीं खत्म हो रहा है। it will only get minimized it how, when you are doing the forgiveness, when you are doing your healing, when you are coming to know about it कि yes आपने ऐसा किया है, and then when you come to know about it through your record, then it is easily you are accepting it। अगर कोई दूसरा भी बोलता है तो लगता है यार ये क्या देख के बोल दिया, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो पीपल थिंक लाइक दिस ऑल्सो। सो इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट। Nobody can edit it, nobody can alter it, yes, but you can minimize your karma. So when we access this record and come to know कि हमारे से क्या गलती हुई है, क्या हमने क्या गलती करके 5 जन्म में आए हैं, तो इट इज वेरी इजीली टू एक्सेप्ट इट। और जो गिल्ट हमें सताता है, वो एक हद तक वो गिल्ट भी हमको सताना कम हो जाता है। देन एट द टाइम एक सिचुएशन एक टाइम ऐसा आता है वी फील रिलैक्स, यस, बिकॉज जर्नी स्टार्ट हो गया, हीलिंग का स्टार्ट जर्नी हो गया, फॉरगिवनेस का जर्नी स्टार्ट हो चुका है। सो एट द टाइम यू फील सो रिलैक्स, यू फील कि यस, जो भी चीज का डर था, फियर था, गिल्ट था, एंग्जाइटी थी, everything is getting minimized, and slowly your fear, anxiety, everything is getting vanished। और कर्म का खाता हमारा कम होता गया, मिनिमाइज होता गया, एंड हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, बिकॉज ये हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वो प्रॉब्लम्स भी स्लोली कम होते गए। सो रिकॉर्ड्स आर द सोर्स ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन। अभी तक जो भी हुआ है पूरे कॉस्मोस में, एवरीथिंग इज स्टोर्ड देयर। दिस इज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। So, when you will go into your record and when you will come to know about it, तो आप लोगों को बहुत सारी गाइडेंस आएगी। You will come to, you will see कि from here and there so many guidances are coming to you। तो डेली लाइफ टाइम का, और ऐसा लगता है यस, एंड यू कैन टेक योर डेली लाइफ टाइम का गाइडेंस फ्रॉम दैट रिकॉर्ड, डेली टू डेली। कोई सोचते कि हम डेली टू डेली लाइफ का गाइडेंस लें, यस, कि आज के लिए भी हमको क्या करना है, यू कैन टेक द गाइडेंस। कभी कभी वी गेट कंफ्यूज कि कल हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए, हमारे फैमिली में ये चीज चल रहा है, सो व्हाट आई शुड डू। सपोज नाउ डेज इतने सारे लोगों को वांट टू डू दिस कोर्स और वांट टू डू दैट कोर्स, बच्चे लोग को चिल्ड्रन वांट टू डू दिस कोर्स और दैट कोर्स, दे आर गेटिंग कंफ्यूज। टेक द गाइडेंस, टेक द गाइडेंस, एंड वहां पे इनडुबल गाइडेंस यू विल गेट। सपोज अगर फॉर यू अभी प्रेजेंट एनर्जी आपका जो है, यू विल गेट 20 गाइडेंस, आउट ऑफ 20 यू आस्क विच इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी, कट होके 10 हुआ, 10 होके 5, लाइक दिस, देन द वन गाइडेंस यू विल गेट कि यस, आगे के लिए, फॉर द फ्यूचर, आगे तक, यस, दिस इज द परफेक्ट स्टैम्प, आई कैन मूव ऑन। बिकॉज वो आपकी एनर्जी है, आपका रिकॉर्ड है, तो
because of your present energy, your record is telling ki yes, you can go ahead with this. And what is, yeah, inside this spiritually, yes, grow करने में help करता है. Materialistic world में, yes, it helps in materialistic world also. It is a soul journey. Obviously it is a soul journey, this akashic record, but in the materialistic world also, because as we are all in the physical body. ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ स्पिरिचुअली है तो हम स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे. स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी चाहिए, पैसे भी चाहिए. अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है तो हम लोगों को हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स, करियर, एवरीथिंग एक बैलेंस्ड फॉर्म में हम लोगों को चाहिए. वी नीड एवरीथिंग टुगेदर. तो यस, यू कैन गेट द record there. Each and every information is there in that record. Present may be. And yes, whatever, what are Akashic records? So I think yahan tak everything is clear to you. If any question till here, you can ask me, or I will move forward. Okay, so what are Akashic records? It is the mystical energies, records of all the events, and I have already explained you all these things. यहाँ पे हर तरह का possibilities है, as it is a consciousness. Whatever it is there, already has explained it to you कि everything live recording वहाँ पे हो रहा है. Everything it is there. डिस्ट्रक्शन से लेके प्रेजेंट लाइफ से लेके, बोलते हैं क्रिएशन से लेके प्रलय तक, एवरीथिंग इज देयर. एवरीथिंग इज देयर, रिकॉर्डेड देयर. सो व्हाई वी शुड लर्न एक्सेसिंग आवर रिकॉर्ड्स? मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक इट इज इन दिस फॉर्म ऑल्सो. यस, लोगों को इस तरीके का भी एक इमेज मिलता है. दैट इज ऑल ओके. So why we should learn accessing our Akashic record? Now, records are pure spiritual tool. It is a pure spiritual tool. अपना, it is a pure spiritual growth. Because यहाँ पे जब हम लोग आए हैं, why we have come to enlighten us, so that we can enlighten, हम लोग का enlightenment हो सके, we can enlighten ourselves, we can know what is the purpose of our life, of this soul. हमारी इस जन्म का क्या purpose है, why I have taken this birth. एक एज अ सोल जर्नी में मेरा ऐसा क्या है इस लाइफ टाइम में आई शुड अचीव. ये तो है नहीं कि हम लोग आए हैं इन दिस फिजिकल बॉडी, खाया पिया गया, बस मौत आई चला गया. नो, ईच एंड एवरी सोल हैज कम विद सम पर्पस. सबका एक जर्नी है. इंडिविजुअल पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन हैज देयर ओन इंडिविजुअल जर्नी ऑफ देयर लाइफ. सो यहाँ पे यू कैन नो अबाउट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, जिससे कि हम लोगों को सबका, यू पीपल कैन हैव दैट एनलाइटमेंट. And this feeling is purely used for soul growth. प्योरली. अब बहुत लोग आप लोग देखे होंगे कि जो लोग रियली जो स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ऋषि मुनि लोग जो पहले में थे, वो लोग इस आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करते थे. दिस इज, ये बोला जाता है कि ये आज का आकाशिक रिकॉर्ड नहीं है. ये रिमेंबर दिस, आज जब रामायण महाभारत हुआ था, उससे पहले भी पता नहीं कितने जन्म से जो ये सृष्टि बनी है, और एक एक इनकारनेशंस भगवान जो लेके गए हैं, जो वहां पे ऋषि मुनि लोग थे, कैसे वो लोग आंख बंद करके वो लोग ले जाते थे. यू हैव सीन आजकल की भगवान राम को ले गए एक मिस्टिकल वर्ल्ड में, दिखा रहे कि ये देखो आप इतने सारे लोग हैं यहाँ पे. नाउ यू कैन सी योर सेल्फ एंड सो पीपल एनलाइटमेंट देखने के, कैसे वो एक एनलाइटमेंट करते थे एक सोल का. वो लोगों को कैसे मालूम होता था? बिकॉज इट वॉज रिटन देयर, इट इज देयर, वो लोगों को मालूम रहता था. नाउ अडेज ये सब खुल के आ रहा है, बिकॉज आई विल टेल यू कि दिस जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल, जो कि भगवान हम लोगों को, ईश्वर हम लोगों को ये जो टाइम दिया है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, बोलते ना कि ये कलयुग में भगवान ने, आप लोग रामायण या जो भी रामायण या गीता जी पढ़ेंगे, इट इज रिटन देयर कि ये जो कलयुग है, इस कलयुग में अगर हम सॉरी सच्चे मन से ईश्वर का नाम ले ले, तो हमको एक स्पिरिचुअल का ग्रोथ का एक रास्ता मिल जाती है. ये एक कलयुग ही ऐसा है
कि अगर हम सच्चे मन से सोच के यस आई नीड टू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज माय सोल जर्नी, एक के बाद एक रास्ता खुलता जाएगा, एक के बाद हमारी एनलाइटमेंट होती जाएगी। लेकिन यस, फॉर दिस ऑब्वियसली वी नीड द हेल्प ऑफ अ गुरु, वी नीड द हेल्प ऑफ द मेंटोर, वी नीड द हेल्प ऑफ द टीचर। और बहुत लोगों का सब में इंट्यूशन पावर्स होता है, इट जस्ट नीड टू एनलाइटन इट दैट। नाउ सो दिस इज प्योरली, एंड यहाँ पे व्हाट यू कैन नो अबाउट योर पास्ट, कि वॉट एवर कि पास्ट में आप क्या करके आए हो, जैसे यू कैन हील द पास्ट ऑल्सो, यू कैन लर्न फ्रॉम योर पास्ट कि आज हम क्या करके आए हैं एंड इस प्रेजेंट लाइफ में हम क्या करें। फॉर एग्जाम्पल देर आर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो, एंड बिजनेस में वॉट एवर द बिजनेस यू वॉन्ट टू ग्रोथ इन, अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है, न्यू जॉब करना है, न्यू रिलेशनशिप में आना है, या प्रेजेंट रिलेशनशिप में है, वाई दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग गुड, and whatever the problems you are going it, if you want a new life opportunities, everything you can know, and you can excuse me, you can know and through this record. There are so many options about your careers, about your business, about your health, money, relationships, everything you can know about it. There are so many future for possibilities, हर एक फील्ड के लिए देयर आर सो मेनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। हम लोग का देन यू कैन हेल्प इन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपका बिजनेस के लिए, पीपल हेल्प यूज दिस रिकॉर्ड फॉर देयर बिजनेस ग्रोथ के लिए, एंड नोइंग द पर्पस ऑफ देयर प्रेजेंट इनकारनेशंस के लिए दे आर यूजिंग इट, हीलिंग द पास्ट। अब पास्ट में हम क्या करके आए हैं, कि हम लोग का इनर चाइल्ड, हाउ आर इनर चिल्ड्रन आर सफरिंग, इंस्टेंटली यू कैन हील इट देयर, इंस्टेंटली यू कैन हील। जो भी किसके साथ भी हमारा जैसा भी रिलेशनशिप्स हैं, यू कैन हील दैट रिलेशनशिप्स, वॉट नो मैटर वॉट वो रिलेशनशिप्स हम पास्ट में कैसा भी करके आए, बिकॉज ऑफ दैट इज फ्यूचर में वी आर सफरिंग। एक बच्चा जब बर्थ लेके आता है ना, तो उसको उस बर्थ के हिसाब से उसको प्रेजेंट में मिलता है, और जो प्रेजेंट में हम लोग करते हैं उससे हम लोग अपना फ्यूचर वी आर क्रिएटिंग इट। सो एवरीथिंग वॉट इज रिटन देयर, हम लोगों को वी कैन डू इट, जितनी भी सुख सुविधा मिल रही है, वेदर इट इज इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वेदर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, everything through this record you can know it, as it is has infinite power and wisdom which is available in here in this record. You have learning possible, learning from the past also, I have told you everything, कि क्या हम पास्ट में क्या कर्म करके आए हैं, कुछ भी करके आए हैं, फिर जो एवरीथिंग आई हैव यहाँ पे आई हैव कर। यस, वन थिंग यू कैन ओवरकम विथ योर फियर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज का फियर है, फोबिया है, कि सपोज अगर किसी का डेथ हुआ आग में जल के, या किसी का डेथ हुआ somebody has पानी में डूब के, वेल में डूब के, या रिवर में डूब के, एंड इन दिस प्रेजेंट लाइफ दैट पर्सन हैज कैरीड दोज फियर्स इन दिस प्रेजेंट लाइफ। तो अब कितनी बात होता है कि पीपल आर थिंकिंग ये फोबिया है कि क्या है। So you can go inside this and you can heal all your fears, you can heal your stress, you can heal your anxiety, everything you can heal there already, because वहां पे जो भी कॉन्शियसनेस है इस फियर को लेके, आपका इंस्टेंटली वो हील होना शुरू होता हो जाता है। जैसे ही पता चलता है यस आई हैव डन दिस, यू स्टार्ट डूइंग द फॉरगिवनेस, यू स्टार्ट डूइंग द हीलिंग, जो मेथड्स इसमें बताए जाएंगे, आगे सिखाए जाएंगे इन द जर्नी, यू विल स्टार्ट अप्लाइंग इट, तो इंस्टेंटली इंस्टेंटली होता है। एंड आई हैव सीन द मिरेकल हैपनिंग देयर, आई हैव सीन द मिरेकल, जो एनलाइटमेंट होती है सोल के, गजब का एनलाइटमेंट होता है। एंड हीलिंग जब शुरू हो जाती है तो ऑब्वियसली ना एनलाइटमेंट तो होगा ना। एंड एक पता चलता है हम लोगों का सोल का पर्पस क्या है, व्हाई वी हैव कम। यस, आई एम नॉट गोइंग टू, जब हमारा मौत आए ना, तो एकदम आसान से ही मौत आए, और एक हैप्पीली हम जाए कि यस, यस मैंने अपना लाइफ पर्पस को पूरा किया, यस आई हैव fully and completely fulfilled
फॉर वॉट आई हैव कम, फॉर वॉट आई हैव टेकन दिस बर्थ, जो हम मोटिव लेके आए थे, तो वो हम भूल चुके हैं। एवरी वन हैज फॉरगॉटन, एवरी वन हैज फॉरगॉटन कि क्यों हम जन्म लिए। एवरीथिंग अपने अंदर के इनर शोर से, अपने इनर स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, अपने अंदर के चीजों से इतने लोग परेशान है। एवरी वन इज सो अनहैप्पी विथ देमसेल्व्स, विथ हर सेल्फ ओनली, कि अपने अंदर की आवाज को सुनना बंद कर दिया है। अपने इनर कॉन्शियसनेस को ही लोग मार चुके हैं। And जब ये इनर एनलाइटमेंट होता है, बिकॉज ऑफ द हीलिंग, बिकॉज ऑफ दिस, a wonderful miracle happens, a wonderful knowing the purpose of the present incarnations. और when जब हम लोग को पर्पस नो होता है कि वाई, जितने भी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स मिलते हैं, रिमेंबर वन थिंग कि आज किसी को लगता भी होगा कि एक ही जन्म में क्यों मेरे इर्द गिर्द इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी आ चुके, व्हाई आई एम गोइंग थ्रू सो मेनी फेजेस इन दिस प्रेजेंट लाइफ। तो बोला जाता है कि अंडरस्टैंड दिस, कि ओनली योर 2 or 3 might be only your 2 or 3 incarnations is left, this is your last incarnations। हो सकता है 1 या 2 बचा हो, या 2 या 3 बचा हो, उसके बाद आपका, बोलते हैं ना कि बस जन्म का जो 84 lakhs जो जर्नी है वहां पे एक बार स्टॉप हो जाता है। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर, एनीवन? एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर ना? वो सब जो आपके लास्ट बर्थ में हुआ है, एनीथिंग व्हाट हैज हैपेंड इट, उससे बहुत ही सारे लोग आगे जिनके साथ बहुत इंटेंस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स मिलती हैं। आई हैव सीन इन माई केसेस सो मेनी इंटेंस एंड रिलेशनशिप पीपल आर गोइंग इट ड्यू टू देयर finances, ड्यू टू देयर फैमिली प्रेशर, ड्यू टू देयर व्हाट एन अप एंड डाउन वो लोग के रिलेशंस में हो रहा है, वो लोग के लाइफ में हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक बॉन्ड। अब ये जो चीज हो रहा है इतना जब इंटेंस हो रहा है ना, कि हर तरह से यहाँ पे पैसा भी नहीं आ रहा है, यहाँ से ये रिलेशनशिप कर रहा है, वहां से आप ये सोचिए कि आपके कार्मिक बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। यू आर कंप्लीटिंग योर कार्मिक बॉन्ड। अब ना यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये हो सकता है कि एक ही जन्म में हम इस कार्मिक बॉन्ड को पूरा कर सकते हैं। दिस माइट बी थिंकिंग कि हाउ इट कैन बी लाइक दिस, एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू विल फर्दर डू दिस कोर्स एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन वी आर बोर्न हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं, ओके गॉड, ठीक है भगवान जी, इन दिस प्रेजेंट इनकारनेशंस, ओके इफ माय 4 incarnations इज लेफ्ट, सो इन दिस इनकारनेशन में मेरे को बहुत ऐसा कर दो कि मेरा कार्मिक बॉन्ड, अब जो 4 हमको जन्म लेने होंगे बस इन कार्नेशंस में, मेरे को मैं 2 यहीं पूरा कर दूं, जो कि अब 2 बस लेफ्ट हूं उसके बाद में। तो एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट करके वी पीपल कम, और जितने भी हमारे कार्मिक डेट हैं वो हम उस लोगों को उसको हम लोग हील करना शुरू कर देते हैं। सो अंडरस्टैंड दिस, जो आपके लाइफ टाइम में जो भी नंबर ऑफ बर्थ्स यू हैव टेकन, एंड जो भी रिमेनिंग है, जो भी कुछ हो रहा है, एंड यू आर वेदर यू आर मूविंग इनटू द स्पिरिचुअल पाथ, वेदर इट इज अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो भी कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ दैट पास, एंड बिकॉज एज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट आप ये बोल के आए हो, कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, एंड yes it is happening to you with that। अगर बहुत लोगों के ये क्षमता भी नहीं होती है तो वो लोग बोलते हैं नो गॉड, ठीक है मेरा 5 incarnation है तो आई विल डू स्लोली स्लोली स्लोली, तो वो लोग के साथ में स्लोली 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 सब कुछ होता है। तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि अरे उसके लाइफ में तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी अच्छा अच्छा चाह रहा है, क्योंकि दैट सोल का कॉन्टैक्ट वो वैसा ही करके आया है। एज आई एम माई सोल कॉन्टैक्ट हैज डन दिस, कि आई वॉन्ट कि मेरे को अब 4 जन्म नहीं लेना है, मेरे को 4 की जगह इस 2 जन्म मेरे को बस बाकी रहे, तो 2 इस आप कर दो, 2 नेक्स्ट जन्म में कर देना, दैट्स इट। सो
ये हो, हम लोग ये करते हैं, तो दिस इज द कार्मिक बॉन्ड जो हम लोग पूरा करते हैं, और इस तरीके से हम लोग की कार्मिक डेट हम लोग की पूरे होते हैं। तो ये जो होता है, वी रिलीज आर कार्मिक बॉन्ड, और इस तरीका से वी release and finish our karmic debt in this spiritual growth, in this akashic field, in while doing the healing and doing the forgiveness prayer and जो भी आगे मेथड है। इफ जो इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी डिफिकल्टीज लाइफ में आ रहे हैं आपके, चाहे वो हेल्थ वेल्थ हो, मनी है, रिलेशनशिप से, घबराना नहीं, एकदम भी मत घबराना, बिकॉज दिस यू हैव वांटेड इट, कि यस स्पिरिचुअली मेरे को इंक्लाइंड होना है, आई वांट टू एनलाइटन माई सेल्फ in this present life. So ultimately this is my goal is, मैं ये करके आई हूँ, मैं ये कॉन्टैक्ट करके आया हूँ या आई हूँ, so let me do this, I will do this। और इसमें वॉट एवर यू कैन डू योर एंसेस्ट्रल हीलिंग ऑल्सो, यहाँ पे यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ कार्मिक डेट, यहाँ पे यू कैन नो अबाउट इट, यू कैन नो अबाउट योर एंसेस्ट्रल कर्मा, यू कैन हील योर एंसेस्ट्रल कर्मा, यू कैन दे जो भी पैटर्न होते हैं जनरेशन कर्स के, यू कैन नो अबाउट इट एंड यू कैन हील दैट, एवरीथिंग यू कैन डू इट, एवरीथिंग इन दिस रिकॉर्ड। पास्ट में आपका जो भी है, ये सब जो एंसेस्ट्रल्स का कर्स है, जनरेशन कर्स है, एंसेस्ट्रल हीलिंग है, आपके जो बोलते 7 ग्रह के, ऑल प्लैनेट्स के भी जो भी है, एवरीथिंग यू कैन हील देम थ्रू दिस रिकॉर्ड, थ्रू दिस आकाशिक जर्नी, यू कैन हील इट। एंड यहाँ पे आता है कि रीजंस फॉर रिलेशनशिप्स, यू मस्ट हैव बीन सेइंग कि रीजंस फॉर रिलेशनशिप्स, कितने भी कॉम्प्लेक्स हमारे रिलेशनशिप किसी के भी हैं, कितने भी इट माइट बी अ स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रिलेशनशिप्स, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड रिलेशनशिप्स विच इज गोइंग, जो कि इस प्रेजेंट इनकारनेशंस में हम लोग कर रहे हैं पूरा, whether it is positive or negative, जो भी कुछ है, it has, if any strong exchange is there in this lifetime, तो you understand this कि ये जो relationships है, ये पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, हम उसके जितने भी कार्मिक बॉन्ड उसके हो रहे हैं, आई एम उसको हम पूरा कर रहे हैं, उसको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को वी आर कटिंग दिस। तो हमारा कार्मिक जो बॉन्ड है, उसका जो कार्मिक डेड है, हमारे रिलेशनशिप्स के इस प्रेजेंट जो पास्ट लाइफ से वी हैव कैरिड, वो सारे के सारे इस प्रेजेंट लाइफ में पूरा हो रहे हैं। सो थ्रू दिस रिकॉर्ड, जितने जो भी रिलेशनशिप्स है विद एनीबडी, चाहे वो विद योर हस्बैंड हो, पेरेंट्स हो, विथ योर चिल्ड्रेन, विथ योर बॉस, विथ योर नेबर्स, एनी रिलेशनशिप्स, यू कैन heal it and you can know it। now यहाँ पे आ रहा है पेरेंट्स इन पेरेंटिंग, when children enters in teen age, it is very difficult nowadays children parents को कि वो लोग का पेरेंटिंग कैसे करें, how should we guide them, how should, because वो लोग देख रहे हैं आजकल, एंड सो मेनी केसेस आर कमिंग कि पेरेंट्स कुछ भी बोल देते हैं, देख रहे हैं टीनेजर्स लोग सुसाइड कर लेते हैं। सो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि अब हम अपने बच्चों का पेरेंटिंग कैसे करें। सो यू कैन एक्सेस योर रिकॉर्ड एंड थ्रू दिस आप थ्रू दिस यू कैन नो इट कि हाउ यू शुड डू द पेरेंटिंग ऑफ योर चाइल्ड। एंड यहाँ पे जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं, यू कैन नो अबाउट इट कि इस ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए क्यों ये मेरे लाइफ में आया है ऐसा, क्योंकि बहुत पेरेंट्स जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं उसको सच में बहुत प्यार नहीं देते हैं, वो उसको बहुत कर्ज करते हैं। और कुछ पेरेंट्स जो जानते हैं कि ये मेरे कर्मों का ही नतीजा है, बिकॉज इन द पास्ट आई हैव डन समथिंग एंड इन दिस प्रेजेंट इंcarnation वो बच्चा ऐसे होके हमारे पास लाइफ में आया है। तो जब इस आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू पता चलता है और हाउ वी कैन, और उसके ये जो चाइल्ड उसको हम कैसे हील कर सकते हैं, यू कैन रियली हील दिस ऑटिस्टिक चिल्ड्रन ऑल्सो, कि उसका पता चलता है कि अच्छा उसका उसके कर्म का खाता ऐसा था, सो जनरेशन कर्स कुछ ऐसा था, एंसेस्ट्रल कर्स कुछ ऐसा था, तो यू कैन हील दिस, तो वो भी बच्चा हील हो जाता है।
So you can do all these things only also. So businessman लोगों को people uses this record for their business, जो भी कंपनीज में वो they are running. मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन दे वांट टू नो कि मैं जो ये मैं रन कर रहा हूँ, मैं इतने करोड़ या अरबों का जो पैसा लगा रहा हूँ, आगे कहाँ कैसे क्या करूँ, क्या कैसे करूँ, इफ अगर कुछ नया अगर अपॉर्चुनिटीज मेरे को चाहिए तो उसमें दे गो इनसाइड इट एंड क्या नया अपॉर्चुनिटीज है दे कैन नो अबाउट इट. अगर नया बिजनेस बनाना है, नया जॉब करियर करना है, अगर नया जॉब चाहिए तो ओके यू कैन ओपन योर रिकॉर्ड. ओके आज के प्रेजेंट लाइफ से ओके एनर्जी के हिसाब से योर एनर्जी इज सपोज यू गेटिंग कंफ्यूज कि what अगर मेरे को ये चूज करना चाहिए, ये चूज करना चाहिए, ये चूज करना चाहिए. नाउ योर प्रेजेंट एनर्जी के हिसाब से नाउ आकाशिक रिकॉर्ड इज टेलिंग यू कि ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से कि मेरे को बोला गया कि ठीक है यू गो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाओ. पहले था कि ओके यू बी द हीलर. नाउ आफ्टर दैट आया कि नाउ यू कैन बी द मेंटोर. नाउ यू स्टार्ट द जर्नी ऑफ द मेंटोर. स्टार्ट स्प्रेडिंग द and start spreading the teaching and enlighten everyone's souls. हर एक सोल का एनलाइटमेंट करना शुरू करो. सो नाउ जब ये पता चला तो ओके अब ये कैसे करना है, अब ये कैसे करना है वो पता चला. ओके थ्रू दिस यूज दिस इक्विपमेंट, ऐसे करो, यूज दिस मीडिया, डू दिस, एनरोल करो एंड स्टार्ट डूइंग द प्रोसेस. सो एवरीथिंग अब वहां पे 10 to 20 आप लोगों को मिलेंगे एंड इट इज यू कि आपको उसमें से सॉर्ट करना है पूछ के क्वेश्चंस. ओके टेल मी, आप यू आर टेलिंग मी दिस इज द थिंग फॉर मी. ओके नाउ विच इज 20 में से 10. ओके 10 आपने बता दिया, आप इसमें से बताइए मेरे लिए मेरे को ये क्या करना है. सो लाइक दिस यू कैन आस्क एंड यू कम टू नो अबाउट इट. अगर किसी को अपने बिजनेस का, अपने फर्म का, या किसी को अपने इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिक नेम चाहिए तो यू कैन आस्क इट. अपने बच्चे का यूनिक नेम चाहिए कि यस एक यूनिक नेम दे कि प्रेजेंट लाइफ में फ्यूचर में वो बहुत सक्सीड करे, ऑब्वियसली यू कैन गो इट. अगर बच्चा को अच्छे स्टडीज में यू वांट टू सेंड, कि अगर ये कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा उसको फील्ड में भेजूं और कौन सा अब्रॉड में कौन सा प्लेस में भेजूं कि उसके लिए आगे उसको वो प्रोग्रेस लेके आएगा, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क. सो वो बोलते ना माइक्रो से माइक्रो, मैक्रो से मैक्रो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज, एवरीथिंग यू कैन आस्क दिस रिकॉर्ड. इवन यू नो जो सिंगर्स होते हैं, आर्टिस्टिक्स होते हैं, जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जो पोइट्री होते हैं, ये लोग सब लोग अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन रखते हैं. दे सिट फॉर एन आवर्स आवर्स. जो आर्टिस्ट होते हैं वो लोग घंटों बैठे रहते हैं उस रिकॉर्ड में और विजुअलाइज करते हैं एंड देन दे डू द रिकॉर्डिंग. जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होते हैं वो लोग घंटे अपने आकाशिक रिकॉर्ड में बैठे रहते हैं एंड एंड दे उस आकाशिक रिकॉर्ड से दे आर कनेक्टेड एंड बस वो जानते रहते हैं ओके व्हाट इज दैट नेक्स्ट, ओके दिस इज व्हाट. जो पोएट्री लिखते हैं ओके एक एक आता है, अच्छा ये ना आया, एक ये स्टैंजा आया, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली इट कम्स एंड ऑटोमेटिकली वो एक चलता है. इन दिस जर्नी ये सोल राइटिंग भी कैसा होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे कर सकते हो, ब्यूटीफुली इट कम्स. सो it is a both in a beautiful thing, beautiful एक artist everything you can compose. अगर you are running a school, you are running a Montessori कि कैसे students को और हमारी growth हो, कि इसमें हम और अपने इस tools को आगे कैसे आगे कर सके. Everything everything I'm telling you you can ask it. In my life if people ask me, people who know me about my life कि मेरा लाइफ कैसा था क्या नहीं था, and when they ask me I to tell everyone because of the angels, because of this akashic, because of this divine energy, मेरा life, my life has fully transformed, fully transformed. I am so blessed about the for the angels are with me every day 24 hours into 7. और जब मैं लोगों को एंजल से कनेक्ट करवाती हूँ एंजलिक थ्रू, चाहे वो मेरे कोर्सेज के थ्रू हो, चाहे मेरे हीलिंग के थ्रू हो, चाहे कोई भी चीज के थ्रू, आई फील रियली ब्लेस्ड कि ठीक है चलो कि गॉड हैज चोजन दिस लाइफ लोगों को हेल्प करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, टू एनलाइटन ईच एंड एवरी सोल जर्नी. सो नाउ मूव
forward towards method of accessing the records, how we can access this record. As seen, record is ourselves बहुत सूक्ष्म है, so we cannot see it through our naked eyes. So how can we see it? We can see it, we can do it through the meditation. अब today we will do this meditation method. आज ये मेडिटेशन मेथड करके मैं आप लोगों को आपके रिकॉर्ड में, नॉट मी, द डिवाइन एनर्जी, द आकाशिक जो कि वहाँ की मास्टर्स हैं, योर मास्टर्स, योर लव्ड वंस, योर teacher, your guiders, your angels will take you through this meditation method and you will access your Akashic record. And then to the prayer method. In this prayer method, there is a two method, that is one pathway prayer method and a surrender prayer method. When you will do this course, then deeply you will come to know about these method. फिर हीलिंग, टेक्निकली हाउ कैन यू हील योर सेल्फ एज सुन एज आप डिवोट करते हो, डिवोशन में चाहते हो, हीलिंग में चाहते हो, इस गर्भ के अंदर चाहते हो, इंस्टेंट योर हीलिंग स्टार्ट। एज सुन एज यू स्टार्ट फॉरगिविंग, आपका फॉरगिवनेस स्टार्ट होता है, इंस्टेंटली आपका कार्मिक डेट, आपका कार्मिक बॉन्ड, सब कुछ धीरे धीरे स्लोली स्लोली कम होते होते खत्म होने लगता है। हाउ, अगर जो रेकी लोग हैं, जो जो इस रेकी फील्ड में, दोज हु नो, those who know the Reiki techniques, जो Reiki ग्रैंड मास्टर्स है, इन दिस थ्रू दिस रिकॉर्ड्स वो लोग कैसे रेकी हीलिंग कर सकते हैं, देयर इज अ मेथड इन दिस, and through your devotion, through your prayer, through forgiveness, how you can heal it, how you can do it. And there's a one specific method which I have introduced, that is Hiranyagarbha method. And one more, it is not written here, that is कि जो मैं continuously बोल रही आ रही हूँ, soul writing. Through that also, कि आपके soul writing के through, because ये जो चीज है soul writing, soul contract, when I was doing angelic healing, I was teaching it, और वो जो automatic writing के through, when I have written my first meditation of for the pregnancy, और इसके बाद I don't know कि कितना भी, तो और I have written the meditations, तो वो जो एंजल्स के थ्रू, ऑटोमेटिक हैंडराइटिंग के थ्रू जो लिखे हैं, तो उससे समझ में एक आया कि दैट इज द एंजल्स विच यू आर हेल्पिंग इट, व्हाई नॉट द सोल, जो हमारे अंदर वो जो सोल है, तो उससे ये जन्मा सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है। एंड यस, एनीवेयर यू विल गो, अगर कोई भी सही तरीके से आपको ये आकाशिक रीडिंग सिखा रहा है, वेयर फ्रॉम एनीवेयर यू आर लर्निंग, तो ये सोल जो कॉन्ट्रैक्ट का है, सोल राइटिंग, डेफिनेटली दे विल टीच यू, डेफिनेटली। दैट इज बिकॉज सोल राइटिंग इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आकाशिक रीडिंग, कि हाउ यू कैन, हाउ योर सोल इज गाइडिंग यू, कि आपके जो आकाशिक गाइड्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो आपको कैसे आपको बता रहे हैं। एज अ फ्रेंड, वन टू वन, व्हेन यू विल लर्न दिस कोर्स ना, पता चलेगा कि एक दोस्त वन टू वन जैसे बात करता है ना, यू आर टॉकिंग लाइक दिस टू देम।